Dear Diary, I've been to a wonderful place. Have always thought ancient and modern are opposites. I was wrong. Here I've seen the first modern city of 4,000-year-old civilization. I've been to places that are endowed with heritage and preserved by time. I always thought man and wild are opposites. Not really. Here I've had conversations with the king of the jungle. I always thought white is the opposite of colors. Proved false. Here I've seen millions of shades dancing in color white. Strange ones, hit terribly by earthquake, are today inspiring others to live, to celebrate. I always thought gods live only in heaven. But here, I heard the sounds of Lord Krishna's flute. I heard the heartthrobs of Goddess Sati. You know what? I saw a place which was attacked hundreds of times by foreign intruders. Still it stands untouched. Even sun god comes to greet good morning to this place. Isn't that a living symbol of faith? I went back in King Ashoka's era. I even stood at the place Parsis entered India. You know who lived here before any human walked on the earth? I have seen that creature in all its glory. I have been to a place where migrated birds come to spend a vacation. I felt kingly at times. I felt crazy at times. I went too deep to explore new world. You know, humans learned to heal before they invented wheels. On my journey, I saw the journey of medical science. I have heard the echoes of bravery that still reverberates among masses. You know, here they celebrate more than 200 festivals a year. I took my taste buds on a journey through flavors and diversified my taste palette. I mean, they have everything. This place has given visionary leaders to the world. Mahatma Gandhi, the soldier of peace and non-violence, who got India her independence. Sardar Patel, who united India after independence. World's tallest statue built in the memory of Iron Man of India. Narendra Modi, who is striving to make developed India. A man pushing forward the development indices in the country with his proactive vision and approach. One of future smart city and all-round development is taking place in this state. I always thought that the sound of my heartbeat would fade in the crowd until I resonated with 132,000 heartbeats. I have seen something unique here too, like the world's longest river front. It means this state is traditional in looks, but truly modern in thoughts. This place
welcomes the world on its doorsteps to do business. I've seen modern splendors sitting atop one another. One can experience the ease of doing business here, as the world is within your reach and accessible anytime. No destination is too far and no dream impossible. Here knowledge is reaching unto the last through most advanced technology. Here the most famous institutions of the country are paving the way of future for the youth. I've seen opportunities. I've seen innovations. I've seen illuminated thoughts of Mahatma being realized. It's not a state. It is a state of mind where all the senses merge. I think I love Gujarat. And you would too. So come, experience the hospitality of this mesmerizing state. Gujarat awaits you with open arms. मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। जल्दी ही हम अपना अगला सेशन हिंदी साहित्य सशक्तिकरण की ओर शुरू करने जा रहे हैं। और बैक स्टेज भी जो लोग हैं जो पिछले स्पीकर्स के साथ फ़ोटो ले रहे हैं या उनसे मिल रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग आगे आ जाएं, सदन को भर दीजिए, क्योंकि साहित्य की इस सदन में जितने लोग उपस्थित हों उतना कम है। हिंदी साहित्य के बारे में मैं कुछ कहूँ, इतना बड़ा मैं हूँ नहीं। जहाँ पर वो सभी लोग हैं जो अलग अलग प्रांतों से आए हैं और जिन्होंने हिंदी की सेवा कई दशकों तक की है, उनके नाम ख़त्म नहीं होते, वहाँ पर मैं क्या ही कहूँ। पर ऐसे परिवेश में और ऐसी स्थिति में सिर्फ इतना कहता हूँ कि दिल के करीब न है उसका झुमका, न रोली ना बिंदी है। दिल के करीब न है उसका झुमका, ना रोली ना बिंदी है। सीधी सादी माँ के जैसी यारों अपनी हिंदी है। सीधी सादी माँ के जैसी यारों अपनी हिंदी है। HINDI। जी हाँ, हिंदी का जब भी जिक्र होता है यही 5 अक्षर हमारे मन में आते हैं और मोबाइल में हम फट से हिंदी वैसे ही लिख लेते हैं, ना कि वैसे जैसे हिंदी को लिखा जाए। हिंदी एक ऐसी भाषा रूपी आज़ाद ख्यालों वाली माँ जिसने अपने बच्चों पर कभी कोई बंदिश का डेरा नहीं डाला। इससे निकली बोलियों ने जिस प्रांत जिस क्षेत्र में अपनी जगह बनानी चाहिए बनाई भी, और वहाँ भली भांति फली फूली भी। मैं चिन्मय सिंह तंवर आप सभी का हिंदी साहित्य की एक यात्रा पर ले जाना चाहता हूँ, जहाँ से आप अपनी स्मृति रूपी जुगनू को अपने निज झोलों में भरकर ले जा सकते हैं। इस यात्रा में हमारे मार्गदर्शन और हमारे साथ में होंगे श्री रविंद्र जी मरेड़िया, डॉक्टर अंजना संधीर जी, डॉक्टर प्रणव भारती जी और श्री विजय तिवारी जी। और इस सेशन को होस्ट करेंगी प्रीति अज्ञात मैडम। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मंच पर आएं और अपना अपना स्थान लें। और जब तक के आप महोदया स्टेज पर आती हैं, तब तक के मैं बता दूं अपने छोटे से मुख से कि आपने अपने जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए हैं। एक बार ज़ोरदार तालियों से। देखिए, साहित्य जो है, कला जो है, पूजा की तरह, अर्चना की तरह होती है। यहाँ भीड़ नहीं होती, यहाँ वो लोग होते हैं जिनके दिल के द्वार खुले होते हैं। तो एक बार अपने आप के लिए, इस सदन के लिए और हिंदी के लिए जोरदार तालियां बजा दें प्लीज मैम।
रवीन जी मरडिया, आपने अपने व्यावसायिक जीवन में भले ही एडम स्मिथ के नियमों का प्रचुर प्रयोग किया हो, परंतु आपने संन्यास के पश्चात अपने CAC और वर्ल्ड आर्ट हब नामक अपने NGO से विभिन्न कला और कलाकारों को प्रोत्साहित करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करने की कामना है। आप अपनी जीवनी के साथ 2 अन्य कविताओं और किताबों को प्रकाशित करने का श्रेय प्राप्त कर चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। रवीन जी मरडिया। डॉक्टर अंजना संधी, आप एक बहुभाषीय लेखिका, कवित्री, अनुवादिका और एक शिक्षिका हैं जो हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और उर्दू भाषाओं में 3 दशकों से अपने पाठकों और आमजनों में अपने विचारों की परस्पर बुआई करती आ रही है। आप कोलंबिया विश्वविद्यालय में बतौर प्रोफेसर भी रही। आपने कई पुस्तकों के अनुवाद किए, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आँख ये धन्य है का गुजराती से हिंदी का अनुवाद मुख्य है। आपको सन 2020 में गुजरात साहित्य पुरस्कार के साथ कई अन्य बड़े सम्मान प्राप्त हैं। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर अंजना संधीर के लिए। डॉक्टर प्रणव भारती जी, आप महज एक वरिष्ठ लेखिका और कवित्री ना होते हुए साहित्य जगत का एक ऐसा नाम है जिन्होंने अनेक दिशाओं में फैलकर हर भावना को रूप दिया, हर भावना रूपी कोपलों को जागृत करती आ रही हैं और आगे भी करते आएंगी। अंतोतगत्व उपन्यास को हिंदी साहित्य अकादमी गुजरात द्वारा प्रथम पुरस्कार प्राप्त है। अवाक्ष उपन्यास श्री योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा प्रेमचंद नामित पुरस्कार व रांची से स्पेनियन पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ। आपको भरतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान दिल्ली से प्राप्त हुआ। अन्य स्थानीय व अन्य बाहरी संस्थाओं से कई सम्मान प्राप्त हैं। आप विश्व के 100 बड़े हिंदी लेखकों में शामिल हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। यही आपका प्रेम है, यही हम सब का प्रेम है हिंदी के लिए और हिंदी के सेवकों के लिए जो हिंदी की सेवा कर रहे हैं उनके लिए। और अंतिम में तो नहीं मगर एक और नाम मैं जोड़ता हूं कि श्री विजय तिवारी जी, आप भारत के साथ साथ विदेशों में भी बड़े बड़े मंचों से अपनी लेखनी का कलम का लोहा मनवाते आ रहे हैं। आपका अंदाज और आपकी अदायगी के मुरीद न ढूंढने से भी मिल जाते हैं। अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल के इस विशेष सेशन हिंदी साहित्य सशक्तिकरण की ओर में मैं चिन्मय सिंह तंवर आपका स्वागत करता हूं और इस सेशन को होस्ट करेंगी प्रीति अज्ञात मैडम, जो एक लेखिका हैं, जो एक कवित्री हैं, जिन्हें सन 2019 में गुजरात साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिनकी हस्ताक्षर नाम से एक वेब पत्रिका चलती है जिसमें हिंदी को पढ़ने वाले 45 लाख लोग जुड़े हुए हैं। एक बार इस चीज़ के लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। और साथ ही साथ उसमें गुजराती और उर्दू को भी स्थान प्राप्त हुआ। माफ़ करिएगा, गुजराती और संस्कृत को स्थान प्राप्त हुआ। मेरे जीवन के लक्ष्यों की तरह मेरी ज़बान भी कभी कभी फिसल जाती है, तो इसलिए मुझसे ये गलतियां होती रहती है। गुजराती और संस्कृत को स्थान प्राप्त हुआ। इसी के साथ मैं सेशन आगे बढ़ाते हुए मैम से दरख्वास्त करता हूं कि आप सभी के बीच में हिंदी को पुरेंगे। एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ इस सदन में ऊर्जा पैदा कर दीजिए। धन्यवाद। Thank you very much. Okay. Thank you चिन्मय जी। आज जैसा कि आप लोग को पता ही है कि हम हिंदी भाषा को लेकर बात कर रहे हैं, हिंदी के सशक्त होने को लेकर बात कर रहे हैं और हिंदी सशक्त हुई है या नहीं इस पर भी बात होगी। और जहाँ तक भाषा का प्रश्न है तो हिंदी जो भाषा है वो एक बहती नदी है, सबको साथ लेकर चलती है। और जैसे कि हम जानते हैं कि समय के साथ सब में परिवर्तन आते हैं, हम लोगों में भी आए हैं। अगर हम अपने पिछले 20 सालों को देखें और आज को स्वयं को देखें तो हमारी भाषा बदली है, हमारा पहनावा बदला है, हमारा खान पान भी बदल गया है। अभी सारे फूड हमारे उसमें जीवन में आ गए हैं, रूटीन में सारे आ गए हैं। तो उसी तरह हिंदी में भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। संस्कृत भाषा से शुरू हुई हमारी ये जो हिंदी है, अपभ्रंश तो इसमें है ही, अरबी, उर्दू, फारसी सभी को साथ लेकर चली है। और आंचलिक भाषाओं का भी इसमें अपना एक योगदान है जो कि हिंदी को मैं तो कहूँगी खूबसूरत ही बनाता है। और बीते कुछ सालों में अभी हिंग्लिश हो गई है, उसमें इंग्लिश भी थोड़ी सी ज़्यादा जुड़ गई है, तो उस पर भी हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ बहुत ही सशक्त पैनल है, उनसे हम बात करेंगे अपने विषय पर।
और ये जो हिंदी में जो बदलाव है, मैं ये कहना चाह रही थी कि ये अचानक नहीं आया है, एक सतत प्रक्रिया है जिसके कारण कि ये सारा बदलाव आया है। और एक वो दौर ऐसा भी था, मुझे लगता है कि हम में से कई लोगों ने उस दौर को देखा होगा, जहाँ की हिंदी को लेकर एक हीन भावना आती थी कि अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो आप कैसे प्रगति करोगे, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अंग्रेजी को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था, और हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के भीतर मैं कहूँगी ख़ास तौर से, क्योंकि उस तरह ऐसे जोक भी बनते थे कि इसकी तो हिंदी हो गई। तो हिंदी हो गई का मतलब हम सब समझते हैं कि यानी आप किसी लायक नहीं हैं, आपका तो हो गया काम बस तमाम। तो ये भाषा को लेकर इस तरह की प्रतिक्रिया थी, लेकिन मैं कहूँगी कि आज का जो दौर है उसमें हिंदी में बहुत परिवर्तन आया है। हिंदी का एक अच्छा काल ही मैं मानूंगी, भाषा की दृष्टि से भले ही नहीं, लेकिन जानने की दृष्टि से निश्चित रूप से बेहतर है। और गौरवान्वित महसूस करते हैं हम हिंदी को लेकर, चाहे वो चैनल्स पर हो या कहीं पर हो। हिंदी भाषा गौरव है, और इसको लेकर किसी भी तरह की हीन भावना मुझे नहीं लगता कि अब दिखाई देती है। हमारी जो हमारे साथ हैं अंजना जी, अंजना संधीर जी, मैं सबसे पहला प्रश्न आपसे करना चाहूँगी। हिंदी विदेशों में भी खासी लोकप्रिय है, तो क्या उसको सशक्त माना जाए, या कि वैश्विक परिदृश्य में भी हिंदी भाषा के सशक्तिकरण को लेकर आपको लगता है कि किसी भी तरह की कोई चिंता व्याप्त है? और इसके साथ एक और प्रश्न ऐड करना चाहूँगी कि आपने चूँकि विदेशों में रहकर हिंदी पर काम किया है, तो उसके बारे में भी हमें बताएं। प्रीति जी, आपने सबको नमस्कार। और हम यहाँ एक अच्छी स्थिति में बैठे हैं जहाँ पर इतने सारे सेशन है कि एक किसी भी सेशन में से उठने को दिल नहीं होता है। अभी जो सेशन चल रहा था उसमें हमारी जान लगी हुई थी। प्रीति जी, आपने जो सवाल पूछा है, और हिंदी देखिए, मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 15 साल समझिए अमेरिका में रही, और मेरे बच्चों को हिंदुस्तानी बनाने के चक्कर में मैंने अमेरिका छोड़ दिया। और क्योंकि मेरी माँ पंजाबी में बोलती थी और वो हिंदी में, वो इंग्लिश में बोलते थे, और मेरी वेट करते थे एक ही कमरे के अंदर बैठकर कि मैं आऊँगी तो पंजाबी को अंग्रेज़ी में करूँगी और अंग्रेज़ी को पंजाबी में करूँगी, इस तरह से वो बात करेंगे। तो सब डिसाइड किया, छोड़ दिया। तो ये कहानी एक अलग है। लेकिन हिंदी का परिदृश्य, मैं जब 95 में गई थी उस समय तो हिंदी, हमारे हिंदुस्तानी लोग भी एक दूसरे से बात करते थे तो वो हिंदी में बात नहीं करते थे, इंग्लिश में ही बात करते थे। एसिमिलेशन का सवाल था, ये था, वो था, बहुत सारे प्रश्न थे। लेकिन जैसे जैसे मैंने पढ़ाना शुरू किया कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, तो मैंने देखा कि अब ये विदेशी बच्चे हैं, इनको कैसे पढ़ाई जाए। तो बहुत सारी मेथड, हमारे पास जो सिलेबस था वो बनाया हुआ था, गोरों का बनाया हुआ सिलेबस था, वही हमें पढ़ाना था। लेकिन इसके बाद भी सिलेबस पढ़ाना, जैसे आज उन्होंने कहा, डीएम साहब ने कहा कि भाई जब तक आप अपने अंतरात्मा से लोगों तक नहीं पहुंचते हैं तब तक आप काम नहीं कर सकते हैं। तो मैंने हमारे जो फिल्मी गाने, कल उनका सेशन बहुत अच्छा था और उन्होंने कहा कैसे, तो मैंने वहाँ जाने के बाद महसूस किया कि लोगों के अंदर हमारे भारतीय गीतों की प्यास क्या है। वो प्यास जो है वो उनको ऐसे भारत से जोड़े रखती है। तो सबके घरों में रेडियो चलते ही रहते हैं। वहाँ एक आरबीसी रेडियो चलता है। उस ज़माने में वहाँ पर पहला एक गयाना के कोई व्यक्ति थे, उन्होंने वो रेडियो शुरू किया, आरबीसी। आज तो वो पूरे अमेरिका में हो गया, उस समय वो न्यूयॉर्क तक उसकी लिमिट थी और उसमें वो गाने बजाया करते थे, हिंदुस्तानी चलता ही रहता था। तो वहाँ पर लोगों को ये नहीं मालूम है कि ये गाना, ये कोई आदमी मर गया है तो उसको ये भजन लगाना चाहिए। भजन ना लगाकर आप इस तरह से गाना लगाइए, आप भजन लगाइए भैया। ये गाने, उनको था कि नहीं, ये आदमी मर गया है, हिंदुस्तान की इसकी आत्मा जो है उसको शांति मिले, इसलिए वो हिंदी का गाना लगा देते थे। तो ये जो प्यास है, आप सोचिए, ये जो आत्मा की प्यास है कि वो 100 साल पहले यहाँ से ले जाए गए, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए गए और वो आज वहाँ रहते हैं। वो मिश्रण हो गया, संस्कृति का मिश्रण हो गया है। और उसके हिसाब से क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो भले इंग्लिश बोलते हैं लेकिन वो संस्कृत में श्लोक कराते हैं, हवन करवाते हैं और उसका जो ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश में चलता है। इंडियन परिधान पहनते हैं और इस तरह से ये, तो मैंने धीरे धीरे क्या किया, मेरी क्लासों में मैंने ना ये फिल्मी गानों का प्रयोग शुरू किया। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये 2 लाइनें हैं, उनमें 3 काल आते हैं।
था थे थी, और ऐसे में मैंने ऐसा बोर्ड पे बनाया करती थी, उस पर था थे थी ही हा है ही गागेगी, तो गागेगी का मतलब है फ्यूचर काल है। उनको मालूम पड़ गया 15। हमारे इंडियन बच्चों को भी जब हम टेंस सिखाते हैं तो बहुत भारी पड़ता है, उनको भी सिखाना बड़ा हार्ड होता है कि ये था है, उसका प्रयोग कैसे है और इसका उसका। तो 15 मिनट के अंदर वो गाने से वो अच्छी तरह से सीख जाते थे कि हाँ, था मीन्स भूतकाल है और हा मीन्स प्रेजेंट है और गा मीन्स फ्यूचर है। अब देखिए, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, सारे प्रश्नवाचक चिन्ह जो हैं वो इनमें आते हैं। तो 15 मिनट में उनको ये मालूम पड़ता है कि अगर प्रश्न पूछना है ये क्या मीन्स क्या, तो वो गाना भी सीखते हैं और फिर उसके बाद में वो भी सीखते हैं। अब देखिए उसके बाद में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 30 तक की गिनती 15 मिनट में उनको सिखा दिया इन गीतों के माध्यम से। तो इस तरह से मैंने एक इनोवेशन किया, मतलब मन में ऐसा था कि हम कैसे मैं उसको करूं। तो मैंने मेरी क्लासों में, मैं आपको सच बता रही हूँ कि मेरी क्लासों, कोलंबिया में 3 सेशन चलते हैं, एक इवनिंग में, मेरा इवनिंग सेशन होता था और 2 सेशन मॉर्निंग में चलते थे। तो मॉर्निंग की शिफ्ट के बच्चे भी मेरी क्लास में होते थे। बोले कि मैम आपकी क्लास में मैं मेरे दोस्त को ले आऊँ। मैंने क्यों? तो बोले नहीं, आपकी क्लास बहुत मज़ेदार होती है। अब बोलो मेरी क्लास बहुत मज़ेदार होती है, इस हिसाब से तो बोर्ड के ऊपर उसे लगाए इस तरह से। अब वो जो गाना है टैपिंग वर्ड सिखाते हैं ना, हम टैपिंग वर्ड सिखाते हैं, जो दिल विल प्यार व्यार, दिल तो है, विल क्या, दिल विल प्यार व्यार, प्रतिध्वनित शब्द जिसको बोलते हैं आप। सो ये छोटी छोटी मेथड जो, मतलब मैं आज 2 दिन से मैं इस सेशन में देख रही हूँ कितनी हम लोग जब तक अटैचमेंट से काम नहीं करते हैं। तो फिर मैंने, मेरा रेडियो शो चलता था RBC रेडियो पर, तो उसमें गानों, हफ्ते में एक गाना बजाती थी, 10 मिनट का गाना होता था, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन और उसका वो सारे के साथ में और ओरिजिनल सॉन्ग। लास्ट में 3 वर्ड, जैसे नमस्ते है, ग्रीटिंग को कहते हैं, शुभ रात्रि है, गुड नाइट को कहते हैं, ऐसे 3 शब्द सिखाती थी। इतने सारे 10 मिनट के प्रोग्राम में पूरे अमेरिका से फ़ोन बजते थे 40 मिनट तक। उसमें एक बार एक बूढ़ी औरत ने मुझे फ़ोन किया, अरे जियो बेटा जियो, मैंने तो ये जावेद अख्तर को गालियाँ दिया करती थी कि लड़की को देखा तो जंगल की आग सिखाई दी इसको। एक्चुअली वो माता जी ना, वो संदल को जंगल सुना करती थी। तो मैंने बोला ये संदल नहीं है, सैंडलवुड है, ये जंगल सैंडलवुड है। तब उनको पता चला कि अरे नहीं नहीं, बोले मैं तो इसको गालियाँ देती थी, जियो बेटा। तो ये जो मैं बता रही हूँ कि भूख किस तरह से चली, तो उस समय मैंने फिर एक किताब, बहुत लोगों का कहना था कि आप किताब क्यों नहीं लिखते। तो मेरे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी कहते हैं कि मैम हमारा तमाशा जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर आप आइए और उसमें ना हमारा शो देखिए, हम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। मैंने कहा व्हाट? तो बोले हाँ। मैं उनके शो में गई। अब उनके शो में उन्होंने जो भारत के लिए गाना चुना वो क्लब सॉन्ग था और कैसे ड्रेस पहने हुए थे। दूसरे दिन क्लास में मैंने बोला, मुझे बोले कैसा हमारा गाना था। मैंने गाना बहुत अच्छा था। बोले हमने डांस किया बढ़िया, हमने भी रिप्रेजेंटेड। आई सेड नो यू डिड नॉट रिप्रेजेंट इंडिया। मैं कहा मालूम है क्लब सॉन्ग था ये, और कैसे कपड़े पहने हुए थे। तो उनको लगा कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उनको मीनिंग नहीं मालूम है। अनजान साहब ने जो कहा वही सही है। वहाँ हम लोग बचपन से इनके गाने, इतनी आत्मीयता भरे गाने और दिल से लिखे हुए गाने सिर्फ हमारी भाषाओं में है। उन्होंने रूहानी बात की थी, हमारी रूहानी, जो रूहानी के दिल से निकली हुई बातें हैं। और जब तक वो दिल से नहीं जुड़, तो फिर मुझे कहा कि आप किताब लिखिए। तो मैंने एक किताब लिखी, लर्न हिंदी एंड हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। और उसके बाद में न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने उसको पिकअप किया और उन्होंने कहा कि हम इस किताब को मतलब छापना चाहेंगे, तो आपका क्या इंटरेस्ट होगा। ये किताब है, मैं आपको बताना चाहती हूँ बहुत एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन जो मैंने किया। ये लर्न हिंदी एंड हिंदी फिल्म सॉन्ग्स किताब है। इसकी 10,000 किताबें और सीरीज अमेरिका में छापी गई। मेरी कंडीशन यही थी कि मैं चले जाऊंगी तो मेरी यात्रा पूरी हो जाएगी, लेकिन ये किताब कहीं पड़ी रहेगी, तो कोई ना कोई मेरे देश को, कोई ना कोई मेरे देश को सुनेगा, उसके बारे में जानेगा। और उसमें HMV जो है, हमारे यहाँ की जो HMV जो आप देखिए इसमें से लोगो बनाया इसका, HMV वालों ने इसको बनाया और पूरी अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट हुई। अक्टूबर में, आप में से कोई अमेरिका गया हो तो अक्टूबर का पहला जो संडे आता है उसमें दिवाली मनाई जाती है, क्योंकि बाद में ठंडी इतनी हो जाती है तो ट्राई स्टेट वाले आते, उसमें दिवाली मेले में इसको लॉन्च करना था। उन्होंने मुझे बुलाया। 28वीं मंजिल कांच की पूरी उनकी ऑफिस है वहाँ मैनहट्टन में, और उसमें उन्होंने मुझे कहा कि अंजना जी वी आर लॉन्चिंग योर बुक। और बोलो आपको मालूम है दिवाली नहीं बोलते हैं, बोले दिवाली बोलते हैं ना। दिवाली, क्योंकि उनके पास एक ही डी है, हमारे पास दाल डाल ढाल कितने सारे हैं अलग अलग। तो बोले वी आर लॉन्चिंग योर बुक। तो मैं व्हाट, यस
दिस इज अ ड्रीम कम ट्रू, और उन्होंने उस किताब को बुलाया। जैसे उन्होंने कहा था ना कि सपने में जब खुशी के जो आंसू आते हैं अपने आप, सो मैं 28वीं मंजिल पे खड़ी हूँ, मेरे हाथ में ये किताब है, और उन्होंने कहा सिग्नेचर करिए। और उसके बाद में 10,000 किताबें और सीडीज, जिसमें से मैंने एक भी पैसा नहीं लिया। मैंने उनसे कहा था आई डोंट वांट ए सिंगल डाइम फ्रॉम यू। तो ये एक योगदान ऐसे ही दिया जाता है। हाँ, और बहुत और ही इस सराहनीय है किताब- आपका ये प्रयास। हाँ, और इस किताब में ऐसा हुआ कि ऐसा मतलब हो गया कि कितने सारे उन्होंने कहा था कि आपको ये किताब फ्री मिलेगी, लेकिन एक वो तो कमर्शियल कंपनी थी, उनको हिंदी से इतना इंटरेस्ट था या नहीं था, लेकिन एक पार्ट हुआ। पर उन्होंने कमाई के हिसाब से जो भी कहा, उन्होंने एक कमर्शियल कहा कि कोई भी बंदा इस कमर्शियल को बना के लाएगा, उसके बाद में हम उसको फ्री में देंगे ये किताब। और पूरे अमेरिका से इतना लोगों ने, उस समय उनके जो कमर्शियल थे ना, उस कमर्शियल में एक हाथी हुआ करता था, हाथी का नाम था देव नारायण। तो सबने देव नारायण बनाकर भेजा और सबको ये किताब मुफ्त में गई। ये एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन अमेरिका में हुआ। मैं चाहती हूँ कि बाकी की बात बाद में करूँ, कुछ और लोगों से पूछ जी, लीजिए। मैं बस वही कहना चाह रही थी कि मैं विजय जी की ओर आगे बढ़ती हूँ। विजय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि क्या सचमुच हिंदी को सशक्तिकरण की आवश्यकता महसूस होती है? यदि हाँ, तो आपको क्या लगता है कि अभी हम किस तरह के प्रयास करें, कैसे प्रयास अपेक्षित हैं? बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। सबसे पहले तो अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजन के लिए मैं आदरणीय उमाशंकर यादव जी को बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अहमदाबाद जैसे इस गुर्जर भूमि पर, इस देश के पश्चिमांचल में, जहां पर हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं हैं, वहां पर इस तरह के आयोजन होना अपने आप में एक बड़ी बात है। और वो भी 2 दिवसीय आयोजन करना, आप यकीनन एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सबकी शुभकामनाएं हैं और ईश्वर ने चाहा तो वाकई में इंटरनेशनल हो। अंजना जी तो अब स्थायी हो गई हैं, लेकिन जो प्रवासी भारतीय हैं जो प्रत्येक वर्ष आते रहते हैं, उनसे भी आपका संपर्क हो, और वो भी जो मूलतः हिंदी भाषी हैं, जो मूलतः भारतीय हैं और हिंदी भाषा में रचनाएं करते हैं, हिंदी में अच्छी साहित्यिक सेवा दे रहे हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित हो सके। तालियों का एक दौर उमाशंकर जी के लिए भी चाहूंगी मैं। उनके प्रयास हम सब देख रहे हैं, फलीभूत होते देख रहे हैं, और बहुत ही बेहतर तरीके से हम 2 दिन से सेशन अटेंड कर रहे हैं, और इतने खूबसूरत सेशन हैं, इतना सोचने समझने जानने को मिल रहा है, और विमर्श के नए कहते हैं द्वार भी खुल रहे हैं। तो बहुत आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है, और सबको आप अवसर दे रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है। विजय जी, आप पर वापस आते हैं। तो जैसा कि आपने प्रश्न पूछा कि हिंदी सशक्तिकरण की ओर है या हिंदी भाषा का विलगाव हो रहा है, तो ये शायद मेरी दृष्टि से गलत है, ऐसा है नहीं। हिंदी प्रारंभ से भी सशक्त थी, आज भी सशक्त है और हमेशा सशक्त रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे मन मस्तिष्क में कुछ चीज़ें इस तरह से बैठा दी गई हैं, जैसे कि चेक लिखना तो अंग्रेजी में लिखना है, आपको रेलवे का फॉर्म भरना है अंग्रेजी में भरना है, आप बैंक में गए हैं कुछ काम करना है तो अंग्रेजी में करना है, आपको अपना विजिटिंग कार्ड बनवाना है तो अंग्रेजी में बनवाना है, घर के बाहर आपको नाम पट लगानी है तो अंग्रेजी में लगानी है, आपका अपना लेटर पैड बनवाना है तो अंग्रेजी में। ये सारे काम अगर आपने हिंदी में किए या ये सारे काम आपने अगर अपनी प्रांतीय भाषा में किए तो देखने वाले आपको हीन दृष्टि से देखेंगे। ये बात मन मस्तिष्क में बैठा दी गई है, जबकि ऐसा है नहीं। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने अपने बिल्डर को आज से 20 वर्ष पहले एक चेक दिया, तो चेक मैंने गुजराती में लिखा क्योंकि वो गुजराती भाषी था, हिंदी में हस्ताक्षर करता हूँ तो मैंने हिंदी में हस्ताक्षर किए। उसने चेक देखा और बड़ी ताज्जुब से उसने पूछा, तिवारी साहब तमें तो भणेला छो ना? बड़ा कमाल का सवाल कर रहा है। मतलब भणेला हूँ भैया, इसीलिए गुजराती में लिख के हिंदी में हस्ताक्षर कर रहा हूँ, वरना 4 शब्द अंग्रेजी के सीख के वही घोटता रहता। तो वो ये बात हमारे मन में बैठा दी गई है। हाँ, ये और बात है कि जिन चीज़ों का जन्म यहाँ नहीं हुआ है, जो भारतीय संस्कृति के नज़दीक नहीं है, जो भारतीय परंपरा से मेल नहीं खा रहे हैं, जो यहाँ पर जिनका जन्म नहीं हुआ है, तो उनके जन्मदाता ने जो नाम दिया है उसी के नाम के साथ हम उन्हें स्वीकार करें। अब रेल को ये कहना कि लोहपथ गामिनी, तो वो भी गलत है। वो रेल है तो उसको रेल के ही रूप में आप स्वीकार करें। आप कार को चौपाया या चौपहिया या अन्य तरह से उसका नामकरण बदल दें तो वो भी गलत है।
मेरा नाम है विजय, मेरा जन्म यहाँ हुआ है, मेरे माता पिता ने नाम रखा है, अब मैं अमेरिका या इंग्लैंड जाऊँ और वो मुझे अपने वहाँ के हिसाब से नाम का अनुवाद करके बुलाएं, तो वो भी गलत है, वो गलत है। हिंदी जो है वो पहले भी सशक्त थी, आज भी सशक्त है और हमेशा सशक्त रहेगी। बात ये है कि हमारे मन के भीतर से वो बात निकल जानी चाहिए कि हम अपनी राष्ट्रभाषा में या हम अपनी प्रांतीय भाषा में अगर काम करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमें हीन दृष्टि से देखेगा या हमारा स्तर जो है वो घट जाएगा, ये है नहीं। जी बिल्कुल। आज की समय में प्रीति जी, आपकी जानकारी के लिए और आप सबकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो लेटेस्ट बिल्कुल न्यूनतम और सबसे अभी अभी जो शब्दकोश आया है, अंग्रेजी का शब्दकोश, तथा कथित अंग्रेजी का शब्दकोश, उसमें अधिकतम शब्द संख्या जो है वो 6 लाख है। 6 लाख से अधिक शब्द नहीं है, जबकि हमारी हिंदी भाषा संस्कृत से निष्पासित हुई है। और सिर्फ हिंदी भाषा ही नहीं, गुजराती और बाकी की अन्य जो प्रांतीय भाषा हैं वो संस्कृत से निकली हैं। तो संस्कृत में 1700 धातुएं, 80 उपसर्ग और 20 प्रत्यय हैं। 1700 गुणे 80 गुणे 20 कीजिए तो कुल शब्द संख्या होती है 27,25,000 के आसपास। ये हमारी हिंदी की शब्द संख्या है और ये तो वो शब्द संख्या है जो मूल धातु, उपसर्ग और प्रत्यय से बनी है। इसके अलावा 2 शब्दों के योग से जो अन्यान्य शब्द बनते हैं वो और भी ज्यादा है। संयुक्त शब्दों को तो अभी वो और भी जोड़ा ज्यादा ही है। नहीं है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। वो सामासिक शब्द जो बन रहे हैं वो और भी ज्यादा है। इसलिए प्रीति जी, आप और हमारा ये पूरा समाज बिल्कुल निश्चिंत रहे, हिंदी कभी निर्वीर्य नहीं हो सकती, वो बहुत सशक्त है। जी मैं भी सहमत हूँ इस बात से, जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा भी था। और अभी भी अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो अगर आप कई साल पहले सोशल मीडिया पर जुड़े होंगे और आज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप जाएं तो हिंदी हर जगह है। आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं, आप वॉइस कमांड हिंदी में देंगे तो आपका गूगल आपकी उसमें मदद करेगा। सारी भाषाएं, आप फेसबुक पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आप आराम से हिंदी में हिंदी भाषा का प्रयोग करके आप अपनी सर्च कर सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, जो कि कुछ सालों पहले तक नहीं था। और हिंदी, हाँ बिल्कुल, हिंदी में ही सर्च करते हैं क्योंकि हिंदी में आसान है सर्च करना। और हमारी तो जो भाषा है जिसमें हम सोचते समझते हैं, अगर हमको वही मिल जाए प्रयोग के लिए तो उससे बेहतर क्या होगा। सोने पे सुहागा वाली बात है। मिली हुई है, मैं वही कह रही हूँ कि हिंदी कहीं नहीं गई है, हम ही हिंदी से दूर भले ही चले गए हों। हिंदी वही है, पूरी तरह से है, हमारे साथ है, हमेशा से है। ये हमने ही शायद उसको अपने से दूर कर दिया या उसको उस तरह से नहीं लिया क्योंकि हम और भाषाओं की तरफ चले गए। और यहाँ पर एक बात जरूर जोड़ना चाहूँगी स्पष्ट तौर से कि और जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। हिंदी तो है ही है और हाँ। हिंदी सशक्त है, डेफिनेटली सशक्त है। हाँ, तिवारी साहब ने बहुत अच्छी बात की, लेकिन जो हिंदी साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं वो उनके लिए। सशक्त हैं कि नहीं, उनकी बात सशक्ति ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और आपकी इस बात पर का मतलब यादव जी, आपकी बात का बहुत सटीक सा जवाब दे दूं। आज से कम 10 वर्ष पहले की बात है ये। मेरठ के कवि सम्मेलन में मैं गया हुआ था। कवि सम्मेलन बड़ा अच्छा चला, बड़ा शानदार कवि सम्मेलन हुआ। कवि सम्मेलन के पूर्ण होने के बाद में एक विदुषी महिला हमारे पास में आई, क्योंकि मंच संचालन मैं कर रहा था, तो उन्हें अच्छा लगा मंच संचालन, कवि सम्मेलन काफ़ी अच्छा चला। उसके बाद में वो हमसे मिली और उन्होंने एक डायरी दी और उन्होंने कहा कि आप अपना नाम पता इस पर लिख दें, हम अपनी संस्था की ओर से एक कवि सम्मेलन करवाना चाहते हैं तो आपको संपर्क करेंगे। तो जैसे ही मैंने वो डायरी ली, यादव जी आपकी बात बता दूं, मेरे से पहले 4-5 लोगों ने अपने नाम पते लिखे हुए थे उसमें, सारे अंग्रेजी में लिखे थे। जो अभी 15 मिनट पहले मंच पर हिंदी के लिए भाषण दे रहे थे, हिंदी के लिए चीख चीख करके गीत गा रहे थे, वो अंग्रेजी में अपना नाम पता लिख रहे थे। तो इससे ज्यादा शर्मनाक, इससे ज्यादा दयनीय स्थिति और क्या हो सकती है। इसलिए आपका प्रश्न जो बिल्कुल सही है और मैंने जो कहा वो भी सही है कि हम जब तक अपने मन मस्तिष्क से वो बात नहीं निकाल देंगे, हम जब तक भयभीत होना नहीं छोड़ेंगे, तब तक वो स्थिति बनी रहेगी। प्रणब जी, यादव जी, आपने जो कहा उसके हिसाब से बताना चाह रही हूँ कि देखिए विदेशों में भी
चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं प्रणब भारती जी की ओर बढ़ना चाहूँगी। प्रणब दी, आपसे कुछ दिन पहले भी इस विषय पर चर्चा हो रही थी और आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर बात की थी और आपने कहा था कि मैं उसको ज़रूर बताना चाहूँगी कि किस तरह से शुरुआत हमारी होनी चाहिए भाषा को लेकर। तो मैं चाहती हूँ कि आप कहें। धन्यवाद प्रीति। यहाँ पर मंच को प्रणाम और आप सब लोगों को नमस्कार मेरा। मैं प्रणव भारती। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अभी विजय जी ने कहा कि हिंदी तो कहीं नहीं गई है, हिंदी यहीं पर ही है। हमारी हिंदी हिंदुस्तान में है, हमारी मिट्टी में है, हमारी ज़मीन में है, हमारे दिल के अंदर है। हिंदी कहीं नहीं जा ही नहीं सकती। लेकिन सवाल इस बात का होता है कि जब हम कुछ विवशताओं को ओढ़ लेते हैं और जब हम कुछ चीज़ों को हम एक बनावटी आवरण दे देते हैं और हम जो दे रहे हैं, यानी कि मैं अपनी भी बात कर रही हूँ उसके अंदर, मैं भी सम्मिलित हूँ। मेरे बच्चे खुद अंग्रेज़ी माध्यम में पढ़े हैं, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो भी और मैं खुद अंग्रेज़ी माध्यम में पढ़ी हूँ। सबसे बड़ी बात है, मैंने पहले अंग्रेज़ी में एमए किया, फिर मैंने हिंदी में एमए किया। पर मैं उसे कहीं भी गलत इसलिए नहीं समझती क्योंकि समय की आवश्यकताएँ होती हैं बहुत सी, और समय की आपकी मजबूरियाँ भी होती हैं। वो किस तरह से आपको लेके चलता है आपको नहीं मालूम होता है। आवश्यकता बात की उसकी है कि वो किस तरह से आप पहुंचते हैं उसके पास में। अब जैसे मैंने पहले अंग्रेज़ी में एमए किया, उसके बाद मैंने हिंदी में एमए किया। मेरे मस्तिष्क में ये आया कि मैं अगर मैं हिंदी में लिख रही हूँ तो क्यों मैं पहले हिंदी के बारे में ज़्यादा ना जानूँ, ये बात हुई। और अभी अगर क्योंकि मैंने प्रीति से जो बात की थी वो ये की थी कि मुझे लगता है कि सशक्तिकरण की बात तो ये है, ठीक है हमारे से जो अगली जनरेशन है वो अंग्रेज़ी में सब कुछ काम कर रही है, मेरे अपने घर में ये सब हो रहा है। लेकिन अगर जैसे मेरी छोटी पोती है, मैं आपको बिल्कुल एग्जाम्पल बता रही हूँ, थोड़ा शायद मुझे नहीं लगता कि ये हटके है, लेकिन इस बात को मैं प्रस्तुत कर रही हूँ कि मेरी छोटी बच्ची सी वो पोती है, वो बड़ी हो गई अब तो बहुत, पर वो खाना नहीं खाती थी जैसे, तो मैंने उसके लिए कविताएं लिखनी शुरू की, उसके लिए छोटी छोटी कहानियाँ लिखनी शुरू की। और जैसे वो एक्चुअली मेरी बहू गुजराती हैं, तो वो गुजराती में भी इसको जैसे सेब को क्या कहते हैं और अपना सफरजंद कहते हैं, हिंदी में इसको सेब कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसको एप्पल कहते हैं। तो ऐसे मैंने 2-3 भाषाओं के साथ में उसके साथ प्रैक्टिस करनी शुरू की और मुझे अच्छा लगा कि उस बच्ची को सारी की सारी भाषाएँ वो बड़े आसानी से उनको समझने लगी। अच्छा, खाना नहीं खाती थी तो बड़ा परेशान करती थी अपनी माँ को कि कहानी सुनाओ तभी खाना खाऊंगी। मैंने उसके लिए कहानियाँ लिखनी शुरू की और मेरे दिमाग में तभी ये बात आई, बच्चे बहुत लड़ाई करते थे। मैं दादी नानी दोनों हूँ कि अगर दादी नानी का बर्थडे केक बन रहा है तो क्या किया जाए, दादी लिखें या नानी लिखें, तो वो लड़ाई कर रहे हैं। तो मैंने कहा तुम छोड़ो ना, दादी लिखना शुरू कर दो। तो मैं दादी भी हूँ और नानी भी हूँ, तो वो दोनों चीज़ें, और वो मेरा एक एक्चुअली वो एस्टेब्लिश हो गया, वो जम गई एक चीज़ कि मैं दानी हूँ। और मुझे इस बात की भी खुशी है प्रीति कि मैं मातृ भारती पे दानी की कहानी के नाम से मैंने एक सीरीज टर्म आपने इजाद कर दिया है, दानी। मैंने वो शुरू की सीरीज। तो मैंने जैसे मेरी बच्ची खाना नहीं खाती थी तो मैंने उसके लिए एक रचना लिखी, मैं वो आप लोगों के सामने बताती हूँ कि मैंने कैसे उसको मोटिवेट किया, उसकी तरफ मैं लेके गई उसे कि चंपक चूहा चला मदर से, खटपट करता निकला घर से, माँ ने दिया था फूड, मैंने जानबूझ के उसमें अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया, माँ ने दिया था फूड, उसका नहीं था मूड, बोला मैं ना खाऊंगा वापस घर ले आऊंगा, क्यों देती हो मुझको फूड, बन जाता था वह तो रूड, मम्मी तो हारी बेचारी बच्चा उसकी जिम्मेदारी, एक दिन जाता था स्कूल उस दिन पवन बहुत थी कूल, पेड़ के नीचे जा बैठा भूख लगी थी पर था ऐठा, मौसी पहुंची म्याऊं म्याऊं कहने लगी तुझी को खाऊं, चंपक भूल गया अवस्था भागा भागा सांसें भरता, पहुंचा वो मम्मी पे जाकर, मम्मी ने पूछा घबरा कर, बोलो बेटा क्या है बात, कुछ न पूछो बात मुझे बना के दे दो भात, अब मैं खाना खाऊंगा ताकतवर बन जाऊंगा। मैं यहाँ पे ये भी कह सकती थी कि सबको मार भगाऊंगा, मैंने कोशिश की ये बताने की उसे कि ताकतवर बन जाऊंगा, मेरे अंदर शक्ति आ जाएगी, मैं सोचने समझने के लिए अपने मानसिक और शारीरिक रूप से मैं तैयार हो जाऊंगा। तो मैंने प्रीति से जो बात की थी, मुझे ऐसा लगा था कि जो एक हिंदी का काम चल रहा है, सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, मैं भी पूरे ज़िंदगी भर से साहित्य के साथ जुड़ी हुई हूँ, उपन्यासों से, सीरियल से, लेकिन
कहाँ बात शुरू होती है? जब हम अपने बचपन से उस चीज़ को शुरुआत करते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि हम अपने पिताजी के शौर्य की कहानियाँ सुन सुन के, और किस तरह से वो हम आपकी प्रकृति में आ गया, किस प्रकार से आपने उसको उस समय भी महसूस किया। तो मुझे लगता है हम हर चीज़ को अगर हम बचपन से अगर हम उसकी शुरुआत करें तो ज़रूर ऐसा नहीं हो सकता, वो धीरे 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 उनको उसमें रुचि आएगी। अब मेरे कुछ ऐसे उपन्यास हैं जो काफ़ी चर्चित हुए हैं, और मेरी पोती ने कहा कि दादी आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, प्लीज़ आप, मैंने उसको उनको पढ़ के सुनाना शुरू किया हिंदी में। मैंने कहा नहीं देखो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये ऐसे है। तो मुझे लगता है मुझे थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा उसके लिए, मुझे अपने बच्चों के लिए शुरुआत से इस चीज़ को अगर करना पड़ेगा तो मुझे क्योंकि भाषाओं से तो हिंदी इतनी ज़्यादा, हिंदी तो लिबरल है, इतनी अपने में समेटने वाली है, इतनी प्यारी भाषा है कि वो सब शब्दों को लेती है। अभी जैसे विजय ने कहा कि भाई रेल है, तो रेल नहीं ना जाने कितनी, मतलब आप लोक भाषाओं के शब्द समझ लिए, दूसरी बात सबको समेटे हैं अपने में, सबको लेके चलती है, हम धारा प्रवाह चलते चले जाते हैं उसके साथ में। तो हमारी तो भारतीय भाषा है, हमारी तो सारी की सारी भारतीय भाषाएं हमारी अपनी हैं, वो हमारी अपनी है, हमारे दिल के करीब है, तो हिंदी कैसे नहीं हो सकता। तो मैं तो बहुत ज़्यादा इस बात को मानती हूँ प्रीति कि अगर हम शुरुआत बचपन से हम करते हैं किसी चीज़ की, तो ज़रूर जाके कहीं ना कहीं वो जो बीज पनपता है और वो जाके कहीं ज़रूर वृक्ष बनेगा, ये मेरा विश्वास है। और तुम जो कुछ बिल्कुल, भाषा जो है सारी एक गुलदस्ते की तरह है, और मुझे लगता है कि हमारा जो देश है बड़ा ही धन्य देश है, विविध भाषाओं का देश है, तो हम इसको एक गुलदस्ते की तरह माने, और जिसके हर फूल की अपनी खुशबू होती है, तो सभी भाषाओं का सम्मान रहे। आपकी बात से मैंने एक तो ये बात समझी, और दूसरा ये कि जॉनी जॉनी यस पापा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के साथ दाल भात खाएंगे, वो भी जुड़ जाए अगर बचपन से ही, तो नींव मजबूत होगी, उसके साथ हमारी भाषा भी आगे बढ़ेगी। हमारे साथ कला के क्षेत्र से जुड़े हुए रवीन जी मौजूद हैं। रवीन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, चूँकि आप एक तो आर्ट गैलरी से रिलेटेड हैं और दूसरा आपने पुस्तक भी लिखी है, कविताएँ लिखते हैं आप, तो कला और भाषा का जो संगम है उसको आप किस तरह से देखते हैं, और उसमें सामंजस्य कैसे बिठाया जा सकता है? क्योंकि जब आर्ट गैलरी की बात आती है तो हमारे सामने पेंटिंग्स और वो सब आता है, वहाँ पर साहित्य नहीं समझ आता। तो मैं आपसे उस पर आपके विचार जानना चाहूँगी। धन्यवाद प्रीति जी, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी भाषा या भाषा और कला ये तो किसी तरह से अलग है ही नहीं। आप एंशिएंट टाइम्स में चले जाइए, जितनी रॉक्स हैं, जितनी गुफाएं हैं, सब जगह चित्रकला से ही सब कुछ वर्णित किया गया है। सब कुछ चित्रों द्वारा ही पहले बताया जाता था कि इंसान क्या कहना चाहता है। और आज भी जब बच्चा केजी से भी पहले या स्कूल जाना जब शुरू करता है तो उसको क्या सिखाया जाता है? अ से अनार, अनार का फोटो दिखाते हैं पहले। आ से आम, आम का फोटो दिखाते हैं। अगर चित्र नहीं, चित्र है तो बच्चे को उतना जल्दी ज़्यादा समझ में आता है। और उसके अलावा कई बार भाषा की एक लिमिटेशन हो जाती है। भाषा कुछ बात बताने के लिए कई बार कई पेज भरने पड़ते हैं। आप एक सुंदर सी आंख बना दो और उसके नीचे एक आंसू दिखा दो, अपने आप में एक पूरी बहुत बड़ी कहानी बन जाती है। तो कला, तो चित्रकला खास करके बहुत 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 शक्तिशाली है, और भाषा की जननी ही चित्रकला है। धन्यवाद। थैंक यू। अंजना जी, आपसे पूछना चाहूँगी कि जब हम अपने देश में रहते हैं तो अलग बात है, लेकिन जब देश के बाहर जाते हैं तो हमारी संस्कृति को हम थोड़ा ज़्यादा याद करते हैं। अपने देश की मिट्टी, वो मिट्टी की खुशबू, चिट्ठी आई है, ये सारे चीज़ें हमारे जहन में आती हैं और बहुत ही गहराई से आती हैं। यहाँ पर रहकर लोगों को संस्कृति की चिंता ज़्यादा है, या विदेश में रहने वाले भारतीय वो ज़्यादा समर्पित हैं अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए? ये बात जब तक हम कहते हैं ना, मर्या वगैरह स्वर्ग ना जवाए, तो जब तक हम बाहर जाते नहीं हैं तब हमें पता नहीं चलता। यहाँ से कैसे बच्चे हमारे, ये विदेशी लोग, इन्होंने पहले हमारा धन लूटा, ये लूटा वो लूटा, अब हमारा युवा धन लूट रहे हैं। आपको मालूम है पूरी दुनिया बूढ़ी हो चुकी है,
पूरी दुनिया बूढ़ी हो चुकी है। आप फ्लोरिडा में चले जाइए, दूर दूर तक आपको बूढ़े ही बूढ़े नजर आएंगे। तो उनके पेट्रोल पंप में पेट्रोल कौन डालेगा, उनकी गाड़ियों कौन चलाएगा, उनके डंकिन डोनट कौन चलाएगा, उन सबको जरूरत है। आप लोग रोकिए अपने उन बच्चों को, उनको समझाइए कि हमारा देश सबसे बड़ा और सशक्त देश है और ये ज़मीन एक ऐसी ज़मीन है कि जिसमें जन्म लेना ही अपने आप में एक पुण्य है। और ये बात जैसे सैनिक कहता है, मैं विदेश में 15 साल रही हूँ और इसलिए मुझे मालूम है, और जाने का सबको लगता है। मैं अमेरिका से वापस आई हूँ और इंडिया में हूँ और बड़े आनंद में हूँ। इस बात का दुख मेरे ससुराल वालों को भी है, परिवार वालों को भी, बहुत लोगों को है। बोले ये पागल औरत कहाँ, इंडिया में क्या रखा है? मैं इंडिया में वो रखा है जो कहीं और नहीं है। मैं भी सहमत हूँ, मेरा भी साथ बिल्कुल ऐसे हुआ है कि मैं आई वापस और सबको लगा क्यों लौट आई। हाँ, सब लोग मुझे पागल बोलते थे। कैन यू बिलीव मी कि मैं कोलंबिया की नौकरी छोड़कर इंडिया में हूँ। वाई? इसलिए कि वहाँ सब कुछ है, करते रहो गधे की तरह काम, लेकिन फिर बाद में जब बैठना हो तो कोई नहीं है आपके साथ। कोई सोमवार को मर गया तो सैटरडे तक पड़ा रहेगा, क्योंकि जलाएंगे कब? किसी को छुट्टी होगी तब जाएंगे ना। तो आप कई लोग तो मजाक करते थे, अरे भैया तू सोमवार को मत मरियो वहाँ, नहीं तो पड़ा रहेगा सैटरडे तक। तो ये सिचुएशन है। और जो लोग बच्चे यहाँ से जाते हैं, वो जाने के बाद उनको पता चलता है कि अब फंस गए। मैं आपको ये बहुत दिल से बताना चाहती हूँ कि अमेरिका जाने के 3 महीने में मैंने जो कविता लिखी थी, अमेरिका हड्डियों में जम जाता है, और कैसे वो कविता जाती है। मैं जब भी सुनाती हूँ वो कविता, लोग रोते हैं। वहाँ भी लोग रोते थे और मेरी पहचान हो गई। लोग बोलने लगे, अरे अंजना जी हमारी तो सचमुच हड्डियों में बन गया है अमेरिका, अब कहाँ जाएंगे? क्योंकि क्या होता है, आप लोग जो तामझाम देखते हैं, उनके सोने के ये और जो जिस तरह से पैसा वैसा वो लोग खर्चते हैं यहाँ पर, आपको ये लगता है कि वहाँ तो सोने के पेड़ लगे हुए हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। उनकी इतनी हार्ड लाइफ है जो आपको दिखती है। वो जो लाइफ है, उस लाइफ ने हमारे यहाँ के जो बच्चों के दिमाग खराब कर रखे हैं, और वो उनमें से कोई सच नहीं बोलता है, क्योंकि वो खुद कुएं में गिर गया है। वो कैसे बोलेगा मैं कुएं में हूँ? पर मैं माफ करना, एक बात सॉरी, मैं हाँ, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। इतना सारा आपने एक्सपीरियंस, मैं भी एक बार यूके गई थी और मैंने बच्चों को पढ़ाया वहाँ पे थोड़ा सा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कि पूरा का पूरा आवा ऐसा बन गया है। अब उसको किस तरह से हम उसको मोड़ें, प्रश्न ये है कि उसको किस तरह से हम मोड़ के लाएं जो वो हमारी उस लाइन पे चलने लगे, जो वो उस हमारी जो भारत भूमि की ज़मीन को महसूस करने लगे अपने दिल के अंदर। वहाँ पे वो समस्या का समाधान आवश्यक है। मैं 2006 में भारत यात्रा पर आई थी, 16 विद्यार्थियों को लेकर, जो अमेरिकी विद्यार्थी थे, NRIs भी थे उसमें। और उन्होंने, उस समय मोदी जी CM थे और मोदी जी से टाइम मांगा था, तो CM उस समय उन्होंने कहा था, एक बात अच्छा आपने जो कहा उसका जवाब दे रही हूँ कि किस तरह से हम लोगों को जोड़ें। तो उस समय ये गोधरा कांड चल रहा था और CM के साहब के बहुत कुछ ये था, तो मोदी जी को 1 घंटा 10 मिनट उन्होंने हमें दिए, और उन्होंने एक NRI विद्यार्थी ने कहा कि हाउ कैन वी हेल्प इंडिया, क्योंकि इंडिया को बहुत पुअर समझते थे वो लोग। तो बोलते हैं हाउ कैन वी हेल्प यू। मोदी जी ने उस दिन भी यही कहा था, और मैंने उनकी जो किताब ट्रांसलेट की है उस किताब में भी मैंने लिखा है कि मोदी जी ने उस दिन भी ये कहा था कि हमें आपका $1 नहीं चाहिए। हमारी टीम पूरी US से आई थी, उसमें उन्होंने कहा था ना, हमें आपका $1 नहीं चाहिए। हाँ, आप भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपना परिवार के, अपने मित्रों को, एक परिवार 5-5 को भेजे, हमारा काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और उस समय भी देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा था कि गुजरात में भेजिए, उन्होंने कहा था भारत में भेजिए। तो ये भारत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, तो मैं अभी मैंने वहाँ जाने के बाद थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ कि मैंने, जैसे उन्होंने कहा कि साहित्य की तरफ से कैसे, मैंने अमेरिका में जाने के बाद अमेरिका का साहित्य ढूंढा। मेरे से पहले 95 मैं गई हूँ और 97 में एक किताब लिखी, कश्मीर पर लिखी, और इतनी मैं नहीं जाना चाहती डिटेल में। तो उसमें 250 अमेरिका में रहने वाले राइटर्स को मैंने जोड़ दिया, और एक किताब मैंने लिखी, प्रवासिनी के बोल। और अमेरिका में पहली वो किताब है, मैं आपको सिर्फ वो पोस्टर दिखाना चाहती हूँ कि आप बोलते हैं ना भाषा, जब हम काम करेंगे नहीं तो कैसे करेंगे। ये किताब देखिए, ये पोस्टर है प्रवासिनी। ये उन लोगों ने पोस्टर बनाया जो हिंदी का ABC नहीं जानते हैं। बहुत बढ़िया। और न्यू अमेरिकन प्रोग्राम चलता है लाइब्रेरी में, जैक्सन हाइट में। उसके न्यू अमेरिकन प्रोग्राम्स के डायरेक्टर ने कहा कि हम इस किताब का ओपनिंग करना चाहते हैं लाइब्रेरी में। तो मैंने बोला सर ये तो हिंदी में लिखी हुई किताब है। अब मैं जो कहना चाह रही हूँ जरा ध्यान दीजिएगा। वो कहते हैं कि सो व्हाट। मैं कहा ये तो हिंदी में लिखी हुई किताब है,
और हिंदी के राइटर्स किया है। तो उन्होंने मुझे जो कहा, हम हिंदुस्तान में ये कहते हैं ये तो महिलाओं का लेखन है, ये दलित साहित्य है। साहित्य में भी इतने सारे बाड़े बना दिए हैं हमने कि ये मत पढ़िए प्लीज। साहित्य साहित्य होता है और साहित्य को साहित्य की तरह ही पढ़ना चाहिए, चाहे वो गुजराती का हो, मराठी का हो, वो हमारा आंतरिक साहित्य तो एक ही है। तो उन्होंने जो मुझे शब्द कहा, वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कभी नहीं भूल पाई हूँ। वो कहने लगे कि भले ये किताब जो है हिंदी में लिखी गई है, लेकिन इसकी बैकग्राउंड तो अमेरिकी है। आप देखिए, वो कह रहा है कि इसकी बैकग्राउंड अमेरिका में बैठकर हिंदी में लिखी गई किताब है और इसका लोकार्पण हम करेंगे लाइब्रेरी के लिए। और ये पोस्टर उन्होंने बनाया। उनका जो उनकी जो मिस्टर गोरे जो गेटनर थे, वो तो गोरे थे, उनकी जो टाइप करने वाला था वो स्पेनिश था, और उनकी जो कोऑर्डिनेटर थी वो कोरियन थी, और हमारे बीच में जो बंदा था वो बांग्लादेशी था। उन्होंने मुझे कहा कि अब मैं टेक्स्ट दे रही हूँ, आप इस टेक्स्ट को ना लोगों तक बता दीजिए। और ये टाइप उन्होंने बनाया, मैं ये दिखा इसलिए रही हूँ कि ये पोस्टर उन्होंने बनाया और वेबसाइट पे लगा दिया। तो हम प्रयास करते हैं तो सब कुछ होता है। आज तो सिनेरियो बदल गया है, मोदी जी ने इसको पूरा बदल दिया है। प्रणव जी, आपसे संक्षेप में आंसर जानना चाहूँगी इसका कि व्यंजन में जैसे नया हट गया है, छतरी और क्षत्रिय का जो छा है वो एक ही होने लग गया है, चंद्र बिंदु और अंक की मात्रा जो है उसमें भी अभी फर्क नहीं दिखता है लेखन में। तो भाषा क्या अपनी प्रामाणिकता और मानक रूप खो रही है, या इसमें जो बदलाव है वो समय के साथ चल रहा है? प्रीति, समय के साथ तो हम जानते हैं, हम सब चीज़ परिवर्तित होती है, हम जानते हैं। लेकिन जैसे जो हमारी पीढ़ी है उसने बहुत सी चीज़ें ऐसी महसूस की हैं, या बहुत सी चीज़ें हमने ऐसी सीखी हैं, या हमने उनको इस्तेमाल किया है कि हम उनको बदल नहीं पा रहे हैं। जैसे अभी भी निदेशालय में से जो मानक भाषा का वो निकला है, तो अभी जैसे इन्होंने पूर्ण विराम जैसी चीज़ है, छोटी सी बात है पूर्ण विराम, अभी वो बिंदु रखना, उन्होंने बिंदु लगाना शुरू कर दिया। अब मुझसे भी कहा गया, मेरे प्रकाशकों ने कहा कि अब तो बिंदु लग गया है तो आप क्यों पूर्ण विराम के ऊपर एम्फेसिस कर रही हैं। लेकिन मैंने कहा क्योंकि मैंने बचपन से इस चीज़ को सीखा है, मैं पूर्ण विराम की मैं आदी हूँ करने की। इसलिए अगर आप मुझे दिखाते, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि मैं अंग्रेजी में कुछ लिख रही हूँ। जब मैं अंग्रेजी में लिखती हूँ तो मैं ऑब्वियसली उसके अंदर अंग्रेजी पत्रिकाओं में बिंदु हम बिंदु लगाते हैं, हम अपना फुल स्टॉप लगाते हैं। लेकिन जब हम हिंदी का प्रयोग करते हैं तो हम उसे पूर्ण विराम लगाते हैं। या तो मैं उसके आदी हूँ, या मैं समझती हूँ कि ये मैं असमर्थता है कि मैं उसको स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ, है ना। वो मेरे अंदर है, मेरे अंदर है, इसलिए मैं उस चीज़ को, मैं तुम्हें मैं सिर्फ एक किस्सा तुम्हारी बात से मुझे याद आया कि मैं वैसे आउट ऑफ द वे शायद थोड़ा सा हो रहा है, बहुत संक्षेप में, क्योंकि अभी हमारे पास अभी काफ़ी सारे। चलो तो ठीक है, आप अगर संक्षेप में बताएं 2 मिनट में तो। नहीं, आप लोग वो करिए ना। नहीं, मैंने जो अंजना बता रही थी ना अभी, तो मैंने यूके में ये चीज़ देखी कि वहाँ पे मुझे तो टाइप करना नहीं आता था, कुछ नहीं आता था। जब मैं वहाँ पे गई तो मेरा एक उपन्यास चल रहा था दिल्ली प्रेस से, हाँ, तो वो उन्होंने मुझे लेमिंगटन स्पा के एक लाइब्रेरी में उन्होंने मुझे मेरी ये इज़ इट यू, तो मैंने कहा हूँ तो मैं ही, ये यहाँ पे कैसे आ गया भाई। हिंदी का वो था, मेरा धारावाहिक चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा आपके पास कैसे है, और वो कैनेडियन लेडी थी, और उसने कहा कि, और वहाँ पे यकीन नहीं करोगी अंजना, वहाँ पे ना मेरे ख्याल से शायद 2% भी नहीं थे लोग वहाँ पे हिंदी पढ़ने वाले, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ लाइब्रेरीज़ में छोटे बच्चों की किताबें हिंदी की और बाकी पूरी दिल्ली प्रेस की किताबें वहाँ पे थीं। तो मेरा मतलब ये है कहने का कि अगर वहाँ पे हो सकती हैं जगह जगह, तो हम छोटे बच्चों के साथ में क्यों नहीं आगे चल सकते। साहित्य तो बढ़ ही रहा है, चल रहा है, लिख रहा है, बहुत लिख रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है, सशक्त है वो, सशक्त तो होगा, इसमें कोई संशय है ही नहीं। सवाल ये हम कितने सशक्त रह पाते हैं इसके साथ, हमारी उसके प्रति जो हमारे उसके प्रति कितनी रुचि है, कितनी हमारे हृदय में उसकी भावनाएं हैं, कितने हम संवेदनशील हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति जी। विजय जी, इसी विषय पर आपसे भी आपके विचार जानना चाहूँगी कि मानक रूप से जो विलग हो रही है हिंदी, उसके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया है? माइक सबके लिए अलग अलग हैं, आप लोग ले सकते हैं। नहीं, ठीक है, माइक तो सिर्फ बात वहाँ तक पहुँचाने के लिए है, और जिस तरह से भाषा का मूल अर्थ है कि भीतर के विचारों को विकीर्ण करके दूसरों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए, उस तरह से मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने के लिए सिर्फ ये माइक एक माध्यम है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये वाला है कि वो वाला है। ये सही है कि हम बहुत सारी चीज़ों में बदलाव चाहते हैं, और बदलाव इसलिए चाहते हैं कि हम सुविधा भोगी होते जा रहे हैं।
एक छोटे से उदाहरण से मैं आप लोगों को ये बात समझाना चाहता हूँ। जैसे कि अभी प्रीति जी ने कहा कि हम पूर्ण विराम की जगह बिंदु लगाना शुरू कर दिया है हमने, या अर्धचंद्र बिंदी की जगह हमने सिर्फ अनुस्वार लगाना शुरू कर दिया है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसके नीचे नुक्ता लगता है, लेकिन हमने नुक्ता लगाना भी छोड़ दिया है। वो इसलिए कि व्यक्ति जो है वो सुविधा भोगी हो गया है। हम घर में भी ये नहीं कहते हैं रेफ्रिजरेटर, नहीं कहते हैं, फ्रीज, खत्म। जितना कम हो सके हम बोलना पसंद करते हैं, जितना कम हो सके हम उतना सुनना पसंद करते हैं। टेलीविजन हम बोलते ही नहीं है, टीवी। कहाँ जा रहे हो? घर। मैं घर जा रहा हूँ ऐसा नहीं कहेगा कोई भी। तो जितना कम हो सके उतना हम उसको अपने व्यवहारिक जीवन में लाना शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, उन शब्दों को बताने से पहले एक बात और स्पष्ट कर दूं आपकी उस बिंदी और चंद्र बिंदी और अनुस्वार के संबंध में। भाषा विज्ञान की जो बड़े भाषा वैज्ञानिक हैं उनकी मीटिंग हुई थी, और उन्होंने उस मीटिंग में उसमें जो उन्होंने सर्कुलेट किया, जो परिपत्र किया, वो ये था कि अगर हिंदी भाषा लिखते समय, क्योंकि हम अन्य भाषाओं के साथ में प्रतियोगिता में हैं, हम विश्व की अन्य भाषाओं के साथ में स्पर्धा में हैं, और हमको अगर उन स्पर्धाओं में जीतना है, आगे बढ़ना है, टिके रहने की बात तो बहुत दूर की है, टिके रहना नहीं है, उन्हें जीतना है और हमें आगे आना है, तो हमें उन भाषाओं की जो सुविधा भोगी चीज़ें हैं उनको अपनाना होगा। जैसे हम अंग्रेजी लिखते समय उस पर सिरो रेखा नहीं लगाते हैं, हम हिंदी में सिरो रेखा लगाते हैं, गुजराती में सिरो रेखा नहीं लगाते हैं। इसीलिए अगर हम हिंदी में सिरो रेखा नहीं लगाते हैं तो वो मान्य है, उसे मान लेना चाहिए। पूर्ण विराम लगाने में अगर समय ज़्यादा लग रहा है, बिंदी लगाते हैं तो मान लेना चाहिए। अगर अर्धचंद्र बिंदी की जगह आप सिर्फ अनुस्वार लगा रहे हैं तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। हालांकि ये गलत के बिल्कुल नज़दीक में है। जैसे हिंदी लिखते हैं अगर हम, तो हाँ पर हाँ नहीं, गलत नहीं, वो इसीलिए है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदी अगर हम लिखते हैं तो जैसे ह पर रसवई, ऊपर बिंदी, द और दीर्घई हमने लिखा। वैसे तो रसवई दीर्घई हम भूल गए, छोटी बड़ी कर रहे हैं, तो जो बिंदी अगर ऊपर लगाइए तो वो गलत है। हिंदी में आधा न ही लगेगा, क्योंकि त थ द ध न जो है वो त वर्ग का सबसे अंतिम व्यंजन है। तो वो जो अगर आप हिंदी लिख रहे हैं तो वो उसमें, क्योंकि द के पहले लग रहा है, द के पहले लग रहा है, त थ द ध न, तो वो आधा लगेगा, ऊपर बिंदी नहीं लगेगी। लेकिन भाषा वैज्ञानिकों की जो मीटिंग हुई है और भाषा को आगे बढ़ाने के लिए, हमें समय के साथ में चलने के लिए ये बहुत सारी चीजें जरूरी हैं। मैं तिवारी साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, क्योंकि ये जो तिवारी साहब बोल रहे हैं ना, एकदम परफेक्ट बात बोल रहे हैं। हम जैसे अपनी जीवन में इवॉल्व होते हैं, एक इवोल्यूशन होता है। इंसान पहले कैसा था, बाद में कैसा हो गया, अब हम वो तो नहीं हो सकते जो पहले थे, तो हम इवोल्यूशन की तरफ तो रहते हैं। इसलिए भाषा को भी इवॉल्व होना बहुत जरूरी है अगर आप उसका डेवलपमेंट चाहते हैं। अब हिंदी में बिंदी है या नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है अगर आप समझ सकते हो उस मतलब को। स्वीकार करना चाहिए। आप इंग्लिश को देखिए, क्यों डेवलप हो रही, पूरी दुनिया में क्यों राज्य कर रही, क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सफोर्ड में हर साल नए वर्ड जोड़े जा रहे हैं सभी भाषा के, मतलब वो सबको अपने अंदर समाहित कर रहे हैं। तो हमें इन छोटी छोटी बातों में पढ़ने के बजाय, हिंदी वाले लोग, मैं कई बार सोशल मीडिया पे देखता हूँ, बहुत ज़्यादा रिजिड तरह के लोग होते हैं। अगर आप ज़्यादा रिजिड रहोगे तो आप लिमिटेड हो जाओगे। हाँ। अगर आपको विस्तार करना है तो बहुत सारी चीज़ों को स्वीकार करना पड़ेगा, फिर तो रूढ़ हो जाएंगे, बंध जाएंगे और अपने दिलों को थोड़ा सा चौड़ा कीजिए, स्वीकार करना सीखिए, बदलाव के साथ चलना सीखिए। हिंदी वाला आपस में, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हिंदी वाला सही है, ना वाला सही है। मैं वही कह रहा हूँ कि भाषा विज्ञानियों ने कहा है कि उसे स्वीकार करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। और हम सब लोग अपने आप को तो भी बदल रहे हैं ना, बदल पा रहे हैं अपने आप को, हम जैसे लोग हम उसको स्वीकार कर पा रहे हैं। नहीं, पर ये अच्छी बात है अगर स्वीकार कर रहे हैं, वो भी एक बड़ा परिवर्तन है। सर मानक हिंदी में एक प्रॉब्लम चल रही है कि या तो ये ले लो या ये ले लो। मानक हिंदी का ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये सॉल्व हो जाएगा। दरअसल अभी बदलाव की प्रक्रिया है, लेकिन हम इसी बात को, आप लोग सब लोग हिंदी में इतना बड़ा काम कर रहे हैं और आप ये बातों को पहुंचा सकते हैं। अगर हम हिंदी का भला चाहते हैं तो हमें इसको जैसा है वैसे रूप में स्वीकार करना। आप इतना रिजिड रहोगे तो लोग बिल्कुल 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 स्वीकार करना। के लोग बोलेंगे कि नहीं मुझे हिंदी चाहिए नहीं, यहाँ के लोग तो एकदम रिजिड हैं, अड़ियल। मैं हिंदी के लिए लड़ते हैं। प्रीति जी, मैं एक कुछ दिनों पहले की बात बताता हूँ। मैं कुछ लिख रहा था और उसमें एक शब्द आया रोशनी।
तो डबल मात्रा भी लगाई, सिंगल भी लगाई, दोनों ही मुझे सही लग रही थी। तो आई वॉज कन्फ्यूज कि क्या होना चाहिए। मैंने इमीडिएटली प्रणव जी को फ़ोन किया, मैंने कहा आप तो ज्ञाता हैं, पढ़े लिखे हैं, तो बताइए क्या। उनका यार ठीक तो दिख रही हैं दोनों ही, मैं भी पूछ के बताती हूँ। उन्होंने 2 घंटे बाद वापस फ़ोन किया कि यार दोनों ही चलती हैं। बिल्कुल, हाँ, स्वीकार करना जरूरी मैं है। एक बात और कह दूं, मैं भाषा विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं। आपको बताओ कुछ एक शब्द ऐसे हैं जो बहुत सारे शब्द, और प्रत्येक भाषा विज्ञान में स्पष्ट है कि प्रत्येक भाषा विश्व की खिचड़ी भाषा है। अन्य भाषा के शब्दों को अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं तो वो भाषा खत्म हो जाएगी। हमारे हिंदी में एक शब्द है जरा। जरा, अगर जरा के नीचे आपने बिंदी नहीं लगाई है तो उसका अर्थ अलग हो जाएगा, और बिंदी लगाई है तो अलग हो जाएगा। जरा के नीचे, ज के नीचे अगर बिंदी लगाई है जरा, तो उसका अर्थ होता है थोड़ा, थोड़ा सा। और अगर बिंदी नहीं लगाई है तो उसका अर्थ होता है मरणासन स्थिति, मरणासन स्थिति, अंतिम स्थिति। मैं माफी बिल्कुल चाहूंगी, रुद्र। बट हमें इस हाँ। सत्र को यहीं रोकना बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल। जैसा कि मैं सुबह से 2-3 बार आके हमेशा जो है समय का अनुमान दिलाती हूँ, ये बातें कभी नहीं खत्म होंगी। मैं उमा शंकर जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे अतिथि गणों को फेलिसिटेट करें। जी, बिल्कुल, इस सत्र के समापन की घोषणा करती हूँ मैं। अगली बार ये प्रोग्राम अपन 3 दिन का रखेंगे। तब भी चर्चा ऐसे ही चलेगी मारिया जी, आनंद तो आएगा। तब भी हम लोग मिल लिए हैं, चर्चाओं के दौर चलते रहेंगे, बहुत समय मिलेगा आगे। मैं चिन्मय से अनुरोध करूंगी कि अपना हिंदी के सत्र के अंत तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि हम इस सत्र का अंत कर रहे हैं या इसे ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि खूबसूरत चीज़ों पर पूर्ण विराम लगाना कभी अच्छा नहीं लगता। इस पर एक छोटा सा अल्प विराम है जब तक हम हिंदी की अगले सदन में उपस्थित नहीं होते। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ गुजरात टूरिज्म का, जीएमडीसी का। एक मिनट जी हाँ, एक मिनट। ये मैं पोस्टर आपको दिखा रही हूँ कि इस समय भी मेरे पास 5 देशों के बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं। मैं सुबह उनको हिंदी पढ़ाती हूँ, शाम को इंग्लिश पढ़ाती हूँ। लेकिन ये देखिए, ये बच्चे कोरोना काल में मेरे साथ पढ़ के गए थे यहाँ से, तो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी, दर फिर खुलेंगे हम फिर मिलेंगे, क्योंकि कोरोना पूरी दुनिया के लिए था। तो मैंने ये कविता उनको भेजी थी और उनसे कहा था कि आप इसको हिंदी में बोलिएगा और अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर सको तो करिएगा। तो उसमें से जितने बच्चे थे उनमें से ये 3 बच्चों ने क्या किया, ये पॉलिश लड़की है पोलैंड से, उसने इसको हिंदी में पढ़ा और फिर उसको अपनी भाषा पॉलिश में ट्रांसलेट किया और वीडियो बना के मुझे भेजा। और ये जापान का लड़का था, ये लास्ट जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ उससे कुछ दिन पहले ही वापस गया, उसने इसको हिंदी में पढ़ा और जापानी में पढ़ा और उसका वीडियो बनाया। और ये लड़का जर्मनी से है, तो जर्मन में उसने ट्रांसलेट किया और उन्होंने वीडियो बनाया। तो एक बार जोरदार तालियां इस खूबसूरत सदन के अल्प विराम पर, क्योंकि हिंदी पर कभी भी पूर्ण विराम ना लगा है और ना कभी लगेगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उमा शंकर सर से कि इस फोटो के बाद में आप प्रेम जो भेंट हमारी हैं वो सभी अतिथियों को भेंट करें। एक बार जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए सदन में उपस्थित उन्हीं सभी स्पीकर्स के लिए, उन सभी वक्ताओं के लिए जिन्होंने हिंदी की इतने सालों से सेवा की, इतने दशकों से सेवा की। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूं गुजरात टूरिज्म का, जीएमडीसी का, सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन सीईई का, आइकॉन बारकोड प्राइवेट लिमिटेड का, क्योंकि और एक और चीज़ है जिनका धन्यवाद आभार करना चाहता हूं, क्योंकि दीवार पर लगी हुई तस्वीर सबको दिखती है, सब उसकी तारीफ करते हैं, मगर पीछे की जो कील है हम लोग उसे भूल जाते हैं। AILF की जो टीम है जो मंच के पीछे है, बाहर है, हमारे सारे वॉलंटियर्स, एक बार उन सभी के लिए ज़ोरदार तालियाँ, आपके लिए ज़ोरदार तालियाँ और थोड़ी मेरे लिए भी, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। धन्यवाद। I love you.
आप लोग यहीं बने रहिएगा, अभी सत्र खत्म नहीं हुआ है। भाषा सभी का धन्यवाद। जो लोग सदन छोड़ रहे हैं, आप सभी से अनुरोध, आप सभी से रिक्वेस्ट कि अगले सेशन के जो भी हमारे स्पीकर्स हैं प्लीज़ बैक स्टेज पर आ जाएं, मंच के पीछे साइक्लोरामा के पीछे आ जाएं। और जो लोग पीछे की ओर हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप आगे